Hello, literaturistic people. I'm back with a gap of almost a month, actually, I think. And today we are going to deal with John Shaw Nilsson's poem, To a Blue Flower. But before starting, we will deal with John Shaw Nilsson 5 key points. It means you should know about the poet well. Without wasting any further time, I'm going to start. Let me choose a better pen or a shape so that I can underline it for you. Okay. This is good. This seems good. It is good. Let me change the color of that thing. Now we are ready. So we are going to start it. John Shaw Nilsson was born on 22nd February 1872 in Penola, and he was born on 22nd of February 1872. You have to remember only 1872 याद रखिएगा. Penola याद रखिएगा. Penola. South Australia. Let me underline these things for you. 22nd of February 1872 is important. In Penola is important. South Australia is not important because he himself is an Australian poet, तो इतना चल जाएगा. He died on 12th of May 1942, Melbourne. That is important. And in Australia itself, इतना important है. You need to take care of these points. His heritage was the Scottish, मतलब कि Scotland इनका original heritage, original belonging, used to belong to Scotland, not because of himself, अपनी वजह से नहीं, because of his parents. Born in Pelona, South Australia, to Scottish immigrant parents. This is important. मतलब his parents were not originally Australians. मतलब कि इनके parents originally Australian नहीं थे, but he is Australian. Can be termed as Australian because इनका जन्म जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, but his parents came from Scotland. Spent his life as a working class laborer despite being one of the Australia's finest lyric poets. और यहाँ पे देखो एक चीज याद रखने वाली बात है कि he was working class laborer. This is important. ठीक है, he worked as a laborer. This one is more important. और he is Australia's finest lyric poets. तो जॉन शॉ निल्सन was a lyric poet. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. हिज फादर जॉन निल्सन, इनके फादर साहब का नाम, वालिद साहब का नाम जॉन निल्सन है. was also a poet who won literary prizes. अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि इनके फादर भी पोएट थे. ठीक है, इनके फादर भी पोएट है और उनको भी लिटरेरी प्राइजेस मिले हुए हैं. The family faced financial hardships as small farmers and rural workers. Financial hardships were common. ये अंडरलाइन कर लीजिएगा. Financial hardships common थी इनके लिए. ठीक, hardships, मुसीबतें थी. Financially they were not stable. So these things are important. You need to remember only these things जो underlined है. बाकी आप छोड़ सकते हैं. South Australia, dates, remembering unnecessary dates is not important. Timeline इनका 1872 से 1942 तक का है. ठीक है, 1872 में बॉर्न हुआ, जन्म हुआ है. फरवरी में इनका बर्थडे पड़ता है. 1942 में डिमाइस हो गया मई में, 12th of May. लिमिटेड एजुकेशन एंड ही वॉज मोर ऑफ अ बिट सेल्फ टॉट पर्सन. और इन्होंने जितना भी लिटरेचर सीखा दैट वॉज सेल्फ टॉट, खुद से सीखा, खुद से सब कुछ किया. आगे हम पढ़ते हैं. हैड ओनली 30 months ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग, केवल 30 महीने की फॉर्मल स्कूलिंग है इनकी. पेनोला में 15 months. ये लाइन टेढ़ी हो गई है, लेट मी फिक्स इट फॉर यू ऑल. 15 months इन पेनोला, मिनी में स्कूल 15 months, तो 15 + 15 30 months का फॉर्मल स्कूलिंग है. उसके बाद खुद से ही पढ़ाई की. रॉबर्ट बर्न्स को पढ़ा, थॉमस हुड को पढ़ा और बाइबल को पढ़ा. बाइबल इज नेसेसरी. developed the poetic sensibilities through these classical influences. अपना इन सारी चीज़ों को पढ़ के he read Bible, he read Thomas Hood, he read रॉबर्ट बर्न्स. मैं इन पे भी बात कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाता है, फिर आप सभी को दिक्कत होती है. डेवलप्ड पोएटिक सेंसिबिलिटीज, मतलब कि जितना भी पोएट्री का स्टाइल सीखा, लिखने का तरीका, तवज्जो जो भी था, सब कुछ ये आया इनके क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस से आया. एंड बाइबल वाज द क्रूशियल वन, क्योंकि वो रिलीजियसली इनको स्ट्रॉन्ग करती है, रिलीजियस बेस इनका स्ट्रॉन्ग करती है. और
My contact number is 9336903429. The email is prakhatripathi50241113@gmail.com and the telegram is thelitoasis. You should join that. वहाँ पे मैंने important questions कुछ पेपर के स्पेशली पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 दे दिया है. और फिजिकल लेबर एंड हेल्थ स्ट्रगल्स, अब भाई प्रॉब्लम थी घर पे तो लेबर का काम करना पड़ा. वर्कड अराउंड 200 मैनुअल लेबर जॉब्स, 200 से ज़्यादा मैनुअल लेबर जॉब की इन्होंने 30 साल तक की. फ्रूट पिकिंग का जॉब किया, स्क्रब क्लीनिंग का जॉब किया, नेविंग का जॉब किया, मतलब कि इधर उधर भटकते थे, स्टुपिडिटी करते थे. क्वेरिंग इज लाइक कि गिट्टी और पत्थर जहाँ से तोड़े जाते हैं फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना, काइंड ऑफ अ माइनिंग ही है. फिर रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया. वॉज फिजिकली स्लाइट नॉट रॉबस्ट बट इंड्योर्ड हार्ड लेबर अंटिल 1928. बहुत मुश्किल से ये सारा सफ़र चला इनका. और ये देखो इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1872 का है और 1928 तक, सोचिए 1872 टू 1928 ही वर्कड एज अ लेबर. अब ऐसी तो बात है नहीं कि पैदा होते ही लेबर का काम करना शुरू कर दिया, बट हिज लाइफ वाज हार्ड. इजी लाइफ नहीं थी इनकी इजी लाइफ नहीं रही है. यू नीड टू रिमेंबर दैट. Until 1928 he was struggling. Later secured a messenger position with the Victorian Country Roads Board. आगे चल करके एक मैसेंजर की पोजीशन इनको मिल गई विक्टोरियन कंट्री रोड्स बोर्ड के थ्रू. फ्रॉम 1906 his eyesight began failing. अब आई साइट भी खराब हो गया था 1906 से. forcing him to dedicate, it is dictate I think, DICTAT, हाँ dictate most of his poetry. तो 1906 से क्या करते थे ये, डिक्टेट करा के लिखाते थे, मतलब अपनी पोइट्री को खुद नहीं लिख पाते थे बिकॉज आई साइट वॉज नॉट प्रॉपर. नेचर फोकस लिरिकल पोइट्री स्टाइल था इनका. रिनाउंड फॉर डेलिकेट म्यूजिकल वर्स सेलिब्रेटिंग ऑस्ट्रेलियन नेचर. ठीक है, म्यूजिकल वर्स, लिरिक पोइट्री, ऑस्ट्रेलियन नेचर को सेलिब्रेट करते हैं. यूज सिंपल इंट्यूटिव मेलोडीज एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. सिंपल लैंग्वेज, इंट्यूटिव मेलोडी, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं आंसर में. हिज पोइट्री वाज प्रेज्ड एज हैविंग बोथ स्ट्रेंथ एंड डेलिकेसी विथ वेल ऑफ हिज लिम्पिड डिलाइट, LIMPID. लिम्पिड मतलब क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, ही इज फेमस फॉर हिज क्रिस्टल क्लियर डिलाइट, मतलब जो लिखना चाहते हैं साफ दिखेगा, कुछ भी छुपा के नहीं लिखा है. जो लिखना चाहते हैं साफ पोर्ट्रे होगा, इन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है while writing. Major publications and literary recognition. की कलेक्शंस में हार्ट ऑफ स्प्रिंग आता है, बैलेड एंड लिरिकल पोम्स आते हैं, न्यू पोम्स आती हैं, कलेक्टेड पोम्स आती हैं. हार्ट ऑफ स्प्रिंग 1919, बैलेड एंड लिरिकल पोम्स 1923, न्यू पोम्स 1927, कलेक्टेड पोम्स 1934. लिव्ड इन पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा दिन तक गरीबी झेली, बट हिज लाइफ but gained recognition from Melbourne literary circles. आखिरी में हार्डवर्क को बहुत दिन तक इग्नोर नहीं किया जा सकता. लास्ट में इनको वो चीज़ें हासिल हुई जो इनके लिए बनी हुई थी. मेलबर्न लिटरेरी सर्कल ने इनके ऊपर ध्यान दिया. रिसीव्ड कॉमनवेल्थ लिटरेरी फंड पेंशन, इनको कॉमनवेल्थ लिटरेरी फंड पेंशन भी मिल गया. Died in Melbourne on May 12, 1942. He died in Melbourne 12 मई 1942. Honored by, इनको ऑनर करने के लिए पोएट्स आए थे. बर्नार्ड ओडाउड आए थे और सर जॉन लैथम आए थे, LATHAM, एट हिज फ्यूनरल पे ये सब भी पहुंचे. दीज आर बिग नेम्स, आप सर्च कर सकते हैं, दे आर बिग नेम्स. जॉन सॉ निल्सन टू अ ब्लू फ्लावर एंड इसमें मैंने थोड़ा सा काम किया है जो इटैलिक्स में है और येलो हाईलाइटेड है, येलो कलर से हाईलाइटेड है, दैट आर द ओरिजिनल लाइंस ऑफ द पोएट्री, और नीचे उसका एक्सप्लेनेशन है. आई वुड बी डिसमल विथ ऑल फाइन पर्ल्स ऑफ क्राउन ऑफ अ किंग, इवन द रॉयल वेल्थ एंड लग्जरी द स्पीकर वुड फील अनहैप्पी. मतलब कि मुझे रॉयल वेल्थ दे दो, लग्जरी दे दो, मेरे लिए वो ठीक नहीं है. बट आई कैन टॉक प्लेनली टू you little blue flower of the spring. He finds joy in speaking simply to humble flower. अब यहाँ पे humble flower is for nature. Humble flower represents nature. You need to remember. Humble flower यहाँ पे nature को represent करता है. Valuing its beauty over riches.
मतलब कि if you are connected to nature you are far more rich than those people who have all the riches. जो समझ गया होगा समझ गया होगा. Here in the heart of September, actually it is September ना. Yes, it is September. ये तो coincident हो गया कि it is the last day of September and uploading this poem for you all. Here in the heart of September, the word that I walk in is full. The time is September, as you all know. Really यही टाइम भी है अभी. The word feels lively and active around him. अब यहाँ पे वर्ड जो है वो लाइवली फील कर रहा है. ऑस्ट्रेलिया का जो अभी हमारे यहाँ जो साइकिल होता है, वेदर साइकिल होता है, वो अलग है. ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज बुश कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर साइकिल है वो अलग है. तो इसलिए यहाँ पे सितंबर में स्प्रिंग का बात कर रहा है. एस से सितंबर, एस से स्प्रिंग, आप याद कर लीजिएगा. द टाइम इज सितंबर, द वर्ड फील्स लाइवली एंड अट्रैक्टिव अराउंड हिम, या फिर एक्टिव अराउंड हिम, एंड दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग. और इनको जो सोलेस मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, वो नेचर में मिल रहा है. ऑफ द हॉट हैप्पी साउंड ऑफ शेयरिंग द रोड हैवी सेंट ऑफ द वुल, the sounds of sheep shearing and the smell of wool fill the rural atmosphere. अब यहाँ पे sheep shearing चल रही है और स्मेल आ रही है, एक भीनी भीनी से खुशबू आती है. जैसे आप जानवरों के आसपास जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनसे एक अजीब सी ही भीनी भीनी से खुशबू आती है. वो अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग होती है, क्योंकि द थिंग इज दैट कि कुछ लोगों को वो पसंद होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है. दिस इज द सिंपल थिंग. और शेयरिंग का मतलब है कि वूल को काटा जा रहा है. जब वूल को काटा जा रहा है, WWOL को काटा जा रहा है, तो और वो स्मेल तेज हो जाती है. और जब वो स्मेल तेज हो जाती है तो यहीं से कहीं ना कहीं पता चलता है कि हाँ, रूरल सेटिंग है, कि हम गाँव में ओरिजिनली हम रूरल सेटिंग में आ चुके हैं. Soon would I tire of all riches or honors or power that they fling. Worldly wealth, honors और power would quickly bore him. मतलब कि वही वाली बात है, मिल जाए तो मिट्टी और खो जाए तो सोना. जिसको नहीं मिला है वो इसी के लिए परेशान है, वेल्थ के लिए, ऑनर के लिए, पावर के लिए. जिसको मिल चुका है उसके लिए ये सारी चीज़ें बोरियत का कारक बन चुकी हैं, कारण बन चुकी हैं. But you are my own, of my own folk. You little blue flower of the spring. The flower feels close and genuine, like something belonging to his own life. The simple thing is that Nilsson is far more connected to the nature. इस वजह से वर्ल्डली अट्रैक्शंस या फिर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दुनियादारी की जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उनको अट्रैक्ट नहीं करती हैं. लेकिन जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि नेचर के पास होना, हैप्पीनेस, गुडविल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. तो फ्लावर जो है वो क्लोज है और वो जेन्युइन अट्रैक्शन दे रहा है, वो जेन्युइनली अट्रैक्ट करता है नेल्सन को, रादर देन पोजीशंस जो कि वर्डली हैं. आई वॉज अराउंड बाय द चेरीज टूडे, ऑल चेरीज आर पेल. ही नोटिसेस यानी नेल्सन साहब नोटिस कर रहे हैं चेरीज को, सजेस्टिंग फेडिंग समर और राइपनेस पासिंग. समर अब बीतने की कगार पे है, इसके बाद समर के बाद ऑटम आएगा, चेरीज वगैरह पक रही हैं, फ्रूट्स वगैरह पक जाते हैं. जब जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में जब मैंगो आते हैं, तो जब मैंगो के छोटे छोटे फल लगते हैं तो आम की कैरी लग जाती है, तो उसको बेसिकली हम समर स्टार्ट होना मानते हैं. फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है फिर वो पक जाता है और फिर मार्केट से धीरे धीरे मैंगो गायब हो जाता है. तो इससे पता चलता है कि विंटर्स आर ऑन द वे, या फिर मॉनसून इज ऑन द वे. मॉनसून आएगा फिर वो चेंज लाता है. द सिंपल थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. अब चेरीज पक चुकी हैं, अब ये साइकिल एक ख़त्म होगी, सीजनल साइकिल ख़त्म हो जाएगी और दूसरी साइकिल ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाएगी. द वर्ड इज अ वुमन इन वेलवेट, यानी कि दुनिया को वुमन इन वेलवेट से बता दिया है. ये वेलवेट कहीं ना कहीं एक तरह से लग्जरी को सिंबलाइज करता है. द एयर इज द कलर ऑफ एल, ALE, एल. अब यहाँ पे देखो
कि द वर्ड लुक्स रिच एंड सॉफ्ट लाइक वेलवेट। अब यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं कि क्या पता दुनिया रिचनेस की तरफ भाग रही है, क्या पता दुनिया रिचनेस की तरफ भाग रही है और पैसे उसे कमाने पे ध्यान दे रही है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और क्या पता कहीं ना कहीं क्या पता कि इनको ऐसा लगता है, जॉन शॉ नेल्सन को लगता है कि दुनिया पूरी प्राकृतिक है यानी पूरा नेचर ही नेचर है चारों तरफ, और अगर नेचर ही नेचर है तो वो जो नेचर है वही लग्जरी है, नेचर ही लग्जरी है। और मुझे ऐसा लगता है, इट इज़ माई इंटरप्रिटेशन, कि दूसरा वाला जो मीनिंग है दैट इज़ फार मोर करेक्ट, और यहाँ पे रीडर रिस्पॉन्स थियोरी के हिसाब से अप्लाई होता है। और एल का मतलब बियर होता है, BEER, बियर पीने वाला। मैंने लिख भी दिया, बियर होता है। और फ्रेगमेंटेड होता है, फ्रेगमेंटेड यानी थोड़ा बहुत फर्मेंट करके उसको बनाया जाता है, फर्मेंटेशन के थ्रू उसको बनाया जाता है। आई वुड बी डिस्मल विथ ऑल फाइन पर्ल्स ऑफ द क्राउन ऑफ अ किंग। मतलब वो बताते हैं कि मैं सारी चीज़ों को नकार दूंगा और आखिरी में दुनिया मतलब नेचर की ब्यूटी जो कि वेलवेट यानी लग्जरी। तो नेचर जैसे कि आप घास पे बैठे हैं तो, और वेलवेट के चद्दरों पे बैठे हैं या उस पे आराम करें, तो घास जो मदर नेचर का घास है, ग्राउंड पे जो घास है वो वेलवेट का काम करती है। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है, ये बता रहे हैं, फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट्स दैट रिचेस कैन नॉट ब्रिंग हिम हैप्पीनेस, यानी कि पैसा इनके लिए पैसा इनको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। जो हैप्पीनेस मदर नेचर इन्हें दे सकती हैं वो हैप्पीनेस पैसा इन्हें कभी नहीं दे पाएगा। एज सिंपल एज दिस। बट आई कैन गिव लव टॉक टू यू, यानी कि मैं अपनी सारी फीलिंग सारी इमोशन उस ब्लू फ्लावर के साथ शेयर कर सकता हूँ, टू अ लिटिल ब्लू फ्लावर के साथ शेयर कर सकता हूँ। और वो लिटिल ब्लू फ्लावर जो है वो स्प्रिंग में ही खिलता है। ही एंड्स टेंडरली सेइंग ट्रू जॉय कम्स फ्रॉम लव एंड नेचर नॉट वेल्थ। और यहाँ पे बहुत ही फिलोसफिकल बात कर दी कि जो असली जॉय है वो नेचर, लव, इन सारी चीज़ों से आता है, ना कि वेल्थ से। ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस इन जॉन शॉ नील्सन्स पोम टू अ ब्लू फ्लावर, दीज आर इम्पोर्टेंट। ये सवाल पूछ सकता है, इमेजरी बताइए, पर्सोनिफिकेशन बताइए, ये सवाल आ सकता है। तो वी आर गोइंग टू डील विथ लिटरेरी डिवाइसेस। इमेजरी में सेंसरी डिस्क्रिप्शन है, हॉट हैप्पी साउंड ऑफ शेयरिंग, रूट हैवी सेंट ऑफ द वूल। हैवी सेंट यानी कि वो पंजेंट से स्मेल होती है जो दिमाग पे चढ़ती है और अजीब लगती है। अगर किसी ने फील किया होगा तो जान रहा होगा। एयर इज द कलर ऑफ एल यानी फ्रेगमेंट, ये फर्मेंटेशन वाली बियर, फर्मेंटेड बियर की बात कर रहे हैं। तो दिस इज इमेजरी इन द पोम, ये इंपॉर्टेंट है। इमेजरी इज रियली इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न इट। बहुत हार्ट एंड सोल से लर्न कर लीजिएगा इमेजरी। पर्सोनिफिकेशन में द वर्ड इज वुमेन इन वेलवेट, दुनिया को ही वुमेन इन वेलवेट बता दिया। रेपिटेशन में आई वुड बी डिस्मल विथ ऑल फाइन पर्ल्स ऑफ क्राउन ऑफ किंग, ये रिपीट हुआ है। कहीं ना कहीं ये लाइन सिंबलाइज करते हैं कि उनको वेल्थ से ज्यादा मतलब नहीं है, सिंपल। सिंबोलिज्म में लिटिल ब्लू फ्लावर ऑफ स्प्रिंग स्टैंड्स फॉर सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंप्लिसिटी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू पुट इट इन अ बॉक्स। और ये कहाँ गया, ये यहाँ से है, just a second, I have not able to use it properly। ये स्टैंड मैं कुछ और करना चाहता हूँ और हो कुछ और रहा है। I'm using scale by the way, okay, now it is good। stands for simplicity, purity and natural beauty, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट है, riches and power versus humble joy of nature, ये इसकी थीम है, मेन थीम भी यही है। The main theme is riches and power versus humble joy of nature। Alliteration में hot happy sound, HH, fine pearls, वहाँ पूरी लाइन देखेंगे तो मिलेगा। टोन में टेंडर है, सिंसियर है, इंटीमेट टोन है। इजी लाइन से, ये सारी चीज़ें इजी हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ओनली, अगर आपको कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस। व्हाट डज द लिटिल ब्लू फ्लावर ऑफ स्प्रिंग सिंबलाइज इन द पोम, ये पढ़ के जाइएगा। हाउ डज द पोम कॉन्ट्रास्ट मटेरियल रिचेस विथ नेचर इन द पोम, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम एंड हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू पोएट्स लैंग्वेज।
और इसी में व्हाट इज द टोन में आप एक चीज और जोड़ लीजिएगा, दैट इज इमेजरी। इसी में आप एक चीज और जोड़ लीजिएगा, दैट इज इमेजरी। मैं लिख दे रहा हूँ IMAGERY, इमेजरी। इमेजरी भी जोड़ लीजिएगा। टोन एंड इमेजरी पे कमेंट करने को पूछ सकता है। एंड आई होप इट इज डन और एंडिंग दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट। Thank you for watching as we have finished John Shaw Nelson's To a Blue Flower completely। इतना अगर आप जान रहे हैं तो you know well।